Good morning. Today we start matter in and surrounding. First of all, what is matter? So, everything in this universe is made up of material which is called matter. Yeah, we can say matter in anything that has mass and occupies space. Okay. So we can divide to study whole the matter. We can divide into three categories. That is physical nature of matter, characteristics of particles of matter, and state of matter. One by one we study. Okay, physical nature of matter means matter कैसा होता है, किस चीज़ का बना हुआ होता है. ओके, तो मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स. मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स, है ना. दे आर कॉल्ड एटम्स. व्हेन एटम एंड एटम combines, it's made molecules. Okay, and these molecules are very very small, है ना. we cannot see through the naked eyes and microscope. We use STM, है ना. we use STM. Okay, and how many state of matter are there? So there are major three states of matter, that is solid, liquid and gas. ठीक है. and one additional, that is plasma and BEC. BEC full form is Bose-Einstein condensate. Now what are the characteristics of matter of particles? So the particles of matter have a space between them. Okay, they have space between them, but they vary from the state to state. If we talking about the solids, तो the particles of solids are very compactly packed, है ना. they have a large and greatest force of attraction, so they are compactly packed. The space is negligible. Space is negligible. And we are talking about liquids, so particles are little bit far away in comparison to solid. They have a space between them, है ना. they have a space between them. And gases, in gases their particles are very far away due to the weak force of attraction. Weak force of attraction. Okay, weak force of attraction. So they have a spaces between them and they vary from state to state. Now they are continuously moving, है ना. the particles which are present in the matter, they are continuously moving, है ना. take example, we put take a beaker and it is filled with the water and put the ink in it, है ना. you can see the ink is spreading out, है ना. ink is spreading out. तो what is the reason behind this? इसका reason ये है कि जो भी पानी के बीच में क्या है, water is a liquid, और liquid के बीच में क्या है, little bit space is vacant, है ना. little bit space is there, तो वहाँ ink के particles आ जाते हैं. ठीक है, ink के particles वहाँ पर आ जाते हैं, है ना. and homogeneous mixture will be made. ठीक है, homogeneous mixture will be big. Another example, when we come out by the playing and this aroma is coming out from the kitchen and you can say that मम्मा आपने आज ये बनाया है ना. या फिर इंसेंस स्टिक हम बर्न करते हैं, तो इंसेंस स्टिक बर्न करने से क्या होता है कि अब ब्यूटीफुल अरोमा इज स्प्रेडिंग इन द एयर. बिकॉज एयर क्या है, एयर में पार्टिकल्स जो होते हैं बहुत दूर दूर होते हैं, है ना. स्पेस बहुत खाली है बीच बीच में, है ना. तो ये एग्जांपल्स हैं. फिर द पार्टिकल्स अट्रैक्ट विद ईच अदर. पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं बिकॉज द पार्टिकल हैज़ अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दैम. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दैम, है ना. द पार्टिकल्स जो हैं वो एक दूसरे से फोर्स की वजह से जुड़े रहते हैं. ठीक है. Now we study the characteristics of solid. Okay, first characteristic, it has a definite shape and volume.
है ना। इसकी शेप जो होती है सॉलिड की फिक्स्ड होती है। फिक्स्ड क्यों होती है? क्योंकि इसके जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज़्यादा है ना। वो कॉम्पैक्टली अरेंज है, वो कहीं इधर उधर जा नहीं सकते, भाग नहीं सकते। तो इनका जो शेप होता है वो कैसा होता है? कॉम्पैक्ट होता है, या हम ये कह सकते हैं दे आर वेरी रिजिड, है ना, दे आर वेरी रिजिड। उसके अलावा दे हार्ड टू कंप्रेस, है ना, इनको कंप्रेस करना डिफ़िकल्ट होता है ड्यू टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड कॉम्पैक्टनेस, है ना। इनके अंदर बीच में स्पेस कम है ना, कॉम्पैक्टली पैक्ड है तो क्या है, स्पेस कम है, तो इनको हार्ड टू कंप्रेस, इनको कंप्रेस करना वेरी डिफ़िकल्ट। बट स्पॉन्ज इज एक्सेप्शन, है ना। स्पॉन्ज में क्या होते हैं, छोटे छोटे टाइनी पोर्स आर प्रेजेंट, टाइनी पोर्स आर प्रेजेंट, जिसकी वजह से बीच में वहाँ एयर स्कैप हो जाती है। जब जैसे ही हम प्रेशर अप्लाई करते हैं तो एयर वो निकल जाती है। अगर कंप्लीटली आप इसमें से एयर निकाल दो तो इस स्पॉन्ज को कंप्रेस करना डिफ़िकल्ट हो जाएगा, है ना। तो इट इज़ हार्ड टू कंप्रेस एंड स्पॉन्ज इज़ अ एक्सेप्शन। नाउ एग्जाम्पल, दे हैव हाई डेंसिटी, इनकी डेंसिटी क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। क्यों होती है? क्योंकि मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। एक गिवन एरिया के अंदर इनका जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं दे आर प्रेजेंट इन लार्ज नंबर, ठीक है। सम एक्सेप्शन आर देयर, दैट इज आइस एंड वुड, बोथ आर एक्सेप्शन, है ना। इनकी डेंसिटी क्या होती है, कम होती है, लो डेंसिटी होती है, एंड इट कैन फ्लो ओवर द वाटर, ये वाटर पे फ्लो कर सकता है, ठीक है। क्यों कर सकता है? क्योंकि आइस जो होता है वो आइस का केज लाइक, जो आइस के अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो केज लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसमें कि एयर एस्केप हो जाती है, विच मेक इट लाइटर, ठीक है। सेम एज इट इज़ वुड, वुड के अंदर भी क्या होते हैं, देयर आर द टाइनी पोर्स, उस पोर्स में क्या हो जाती है, एयर फिल हो जाती है, विच मेक इट लाइटर, ओके। तो आइस एंड वुड कैन फ्लोट, है ना, एंड हैव अ लो डेंसिटी। बट एक इंटरेस्टिंग थिंग इज देयर, आइस एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना, इट हैज़ अ मैक्सिमम डेंसिटी, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर मैक्सिमम डेंसिटी होती है। लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता जाता है इनकी डेंसिटी भी क्या होती जाती है, कम होती जाती है। अब नेक्स्ट बात करते हैं लिक्विड्स की, ठीक है। लिक्विड्स जो होते हैं इट हैज़ फिक्स्ड वॉल्यूम, इनका वॉल्यूम तो फिक्स होता है। सपोज़ आप एक गिलास में पानी लीजिए, ठीक है, एक बॉटल ले लीजिए और एक जार ले लीजिए, है ना। तो आप इनको ट्रांसफ़र करेंगे तो ट्रांसफ़र करने से क्या होगा, शेप जो होगा वो कंटेनर के अकॉर्डिंग हो जाएगा पानी का, बट जो वॉल्यूम रहेगा इट शुड बी सेम, ठीक है। तो इनका डेफिनाइट वॉल्यूम होता है, बट जो शेप होती है इट नॉट फिक्स्ड, है ना, इट वेराई फ्रॉम द शेप ऑफ द कंटेनर। कंटेनर की जैसी शेप होती है वैसा ही वाटर या लिक्विड उसको ऑक्यूपाई कर लेता है, ठीक है। इट कैन बी लेस कंप्रेसिबल बिकॉज दे हैव अ लेस इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। तो इसको हम लेस कंप्रेस या हम ये बोल सकते हैं नेग्लिजिबल, क्योंकि अगर वाटर एक 1 गिलास ऑफ वाटर इस पर आप प्रेशर अप्लाई करोगे तो क्या होगा, वाटर के ऊपर वो फिल्स आउट, है ना, वो बाहर की तरफ आएगा, है ना, इट कंप्रेस नहीं होगा। तो हम ये मान सकते हैं कि लेस कंप्रेसिबल बट नेग्लिजिबल वर्ड वी कैन यूज़, है ना। एंड इसकी जो डेंसिटी होती है, लिक्विड्स की डेंसिटी जो होती है वो सॉलिड्स के कंपैरिजन में कम होती है। क्यों? क्योंकि इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो थोड़ा सा वीक होता है इन कंपैरिजन टू सॉलिड्स। तो मॉलिक्यूल्स आर लिटिल बिट फार अवे फ्रॉम द ईच अदर, तो देयर इज़ अ स्पेस बिटवीन दैम, है ना। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो गए, कम हो गए, यानी कि डेंसिटी क्या हो गई, कम हो गई, है ना, क्योंकि मास कम हुआ है ना। आपको पता ही है कि डेंसिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, यानी कि मास कम हुआ है तो डेंसिटी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ओके। अब मॉलिक्यूल्स जो है वो कंटिन्यूसली मूव करते हैं, है ना। इनकी काइनेटिक एनर्जी होती है, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो सॉलिड के कंपैरिजन में क्या होती है, ज़्यादा होती है ना। तो दे कैन मूव, इसलिए इनको बोलते हैं हम फ्लूइड्स, बिकॉज दे कैन फ्लो और दे कैन मूव। सॉलिड में गेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने की वजह से जो मॉलिक्यूल्स होते हैं दे आर नॉट फ्री फॉर द फ्री मूवमेंट, है ना, दे डू ओनली टू एंड फ्रो मोशन, वाइब्रेशन करते हैं केवल अपवर्ड डाउनवर्ड। चलो अब हम डिस्कस करते हैं गैसेस की प्रॉपर्टी।
तो जो गैसेस जो होती हैं जनरली वो क्या होती हैं, जिनका ना तो डेफिनाइट शेप होता है ना ही डेफिनाइट वॉल्यूम होता है। ये पर्टिकुलर एरिया को ऑक्यूपाई कर लेती हैं। जैसे रूम में क्या होता है, खाली रूम है तो वहाँ क्या है, एयर है, क्योंकि जो एयर ने वो पूरा स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया। तो हम ये कहते हैं कि गैसेस का ना तो वॉल्यूम फिक्स होता है ना ही उनकी शेप फिक्स होती है। इट ऑक्यूपाइज द शेप ऑफ कंटेनर। जिस वेसल में या जिस कंटेनर में उसको रखते हैं उसको वो ऑक्यूपाई कर लेती है। ठीक है, एयर के एग्जाम्पल्स हो गए, गैसेस के एग्जाम्पल्स हो गए एयर, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, तो गैस की जो मॉलिक्यूल्स होती हैं उनकी हाई काइनेटिक एनर्जी होती है। अब हाई काइनेटिक एनर्जी क्यों है? बिकॉज दे हैव वीक वैन डर वाल फोर्सेस, है ना, वीक काइंड ऑफ वैन डर वाल फोर्सेस प्रेजेंट बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस, है ना, जिसकी वजह से ये दे आर फ्री फॉर द मूवमेंट, है ना, दे शो रैंडम मूवमेंट। ये रैंडम मूवमेंट शो करते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। ठीक है, इनकी डेंसिटी बहुत कम होती है क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल्स में क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, तो दे आर वेरी फार अवे फॉर ईच अदर। तो उनकी डेंसिटी क्या हो गई, कम हो गई, क्योंकि मास और भी कम हो गया। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि गैसेस की डेंसिटी सबसे कम होती है, सॉलिड की सबसे ज़्यादा होती है, और लिक्विड की क्या होती है, मॉडरेट डेंसिटी होती है। ओके, अब गैसेस को कंप्रेस करना बहुत इजी है ना, क्योंकि इनके बीच में क्या जगह खाली है। हम इजीली इनको क्या कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं, दबा सकते हैं बाय अप्लाइंग द प्रेशर। तो जब गैस के मॉलिक्यूल पे हम प्रेशर अप्लाई करेंगे तो प्रेशर अप्लाई करने से क्या होगा, ये दोनों पास पास आ जाएंगे। पास पास आने से क्या होगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना, लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लिक्विफिकेशन, convert into the liquid. So by applying pressure, gas can convert into liquid, and this process is known as liquefaction. Okay, next state है plasma state. तो plasma state जनरली क्या होती है, इसमें आयनाइज्ड गैसेस होती हैं। गैसेस भी कैसी फॉर्म में होती हैं, आयनाइज्ड फॉर्म में, आयंस की फॉर्म में होती हैं। ठीक है, तो जैसे आपने रोड पे साइंस देखे होंगे जो ग्लो करते रहते हैं, तो उनमें कौन सी गैस होती है, हीलियम है, ऑर्गन है। वो आयनाइज फॉर्म में होती है क्योंकि उनमें इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं। तो जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो गैसेस क्या हो जाती है, आयनाइज्ड हो जाती हैं, आयंस में कन्वर्ट हो जाती हैं, एंड दे रेडिएट द लाइट, जिसकी वजह से वो हमें ग्लो करते हुए दिखाई देते हैं। आजकल आपने देखा होगा कि ट्रैफिक लाइट, जो ट्रैफिक मैन होते हैं, वो एक रात में एक स्टिक जैसा वो करते हैं, ग्लो लाइट बोलते हैं जिसे, तो वो ग्लो करती है। उसमें क्या होता है कि एक बटन ऑन करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, उसके अंदर जो हीलियम एंड ऑर्गन गैस भरी हुई होती है वो आयनाइज्ड हो जाती है और ग्लो करने लग जाती है स्टिक। ठीक है, तो उससे वो ट्रैफिक को कंट्रोल करते हैं। तो गैस जो प्लाज्मा स्टेट है, नथिंग एज इट इज़ अ आयनाइज्ड गैसेस जिनकी हाई काइनेटिक एनर्जी होती है। अब जब काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी तो दे मूव वेरी फास्ट, वेरी रेंडम। ठीक है, तो जनरली हम ये बोल सकते हैं दे आर चार्ज पार्टिकल एंड कैन ग्लो, है ना, एट वेरी लो प्रेशर। प्रेशर बहुत कम रहता है और ये क्या करते हैं, चार्ज हो जाते हैं और ग्लो करते हैं। ठीक है, तो पार्टिकल इन एक्साइटेड स्टेट गिव ऑफ लाइट। जब पार्टिकल एक्साइटेड स्टेट में आ जाते हैं बाय एब्जॉर्बिंग द इलेक्ट्रिसिटी और बाय एब्जॉर्बिंग द एनर्जी, तब वो क्या बन जाती है, प्लाज्मा स्टेट। जैसे लाइटनिंग, बिजली का चमकना, एंड जो प्लाज्मा टीवी आते हैं वो एग्जाम्पल है इसका, प्लाज्मा स्टेट का।